Hello everyone, welcome to the online classes. In our previous video, we had already completed exercise 12.1. Now today we will start our next topic, that is proportion. Consider the following example. Suppose 10 kg and 15 kg of wheat cost rupees 100 and 150 respectively. Right? Now, ratio between the cost of wheat and weight and ratio between the weights of the wheat. तो टोटल रेशियो क्या है हमारा, कॉस्ट है 100 अपॉन 150, तो इसका रेशियो आ गया 2:3। 10 के और वेट का निकालना है 10 kg अपॉन 15 kg, तो रेशियो आ गया 2:3। so students, second and third examples is your homework, second, third, fourth. Now move to the next, that is the continued ratio. क्या होते कंटिन्यूड प्रपोर्शन, ये आपको सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग. फर्स्ट वी हैव टू in general, four numbers, that is A, B, C and D are in the proportion. तो ये क्या हो गया, A ratio B and C ratio D are equivalent ratio. The proportion is read as A is to B and C is to D. हम ऐसे इसको रीड करेंगे, A is to B and C is to D. It means that ratio A to B is the same ratio to the C to D. The first and the fourth term are called the extreme term, or the second and third term are known as the middle term, or means, I repeat it again, first and fourth term, उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम, और B और C को कहते हैं मिडल टर्म्स और मीन्स. Its four quantities are in the proportion. Then the product of extreme or middle is known as the are in the middle terms or means. Thus हम क्या करेंगे, A को मल्टीप्लाई करेंगे D से, B को मल्टीप्लाई करेंगे C से. इससे हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा, प्रपोर्शन. कौन सा, एक्सट्रीम टर्म्स का और मिडल टर्म्स का. राइट. Now move to the next, that is the continued proportion. Three numbers, that is A, B and C. अगर अभी हमने डिस्कस किया था वो 4 टर्म्स का था. नाउ अगर हमें 3 टर्म्स का प्रपोर्शन फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, दैट इज A रेशियो B एंड डबल प्रपोर्शन B रेशियो C. तो हम इसको कैसे रेट करेंगे, 3 numbers, that is A, B and C are said to be in continued proportion if A, B and B and C are in the ratio. The middle term B is called the mean proportional. The between the first term and the third term, जो इन दोनों के बीच की टर्म है A और C की, that is known as mean proportional between the first term and the third term. Now solved examples is your homework. Now move to the next, that is exercise 12.2. Again I will solve first part, second, third and fourth is your homework. Okay students, let's start exercise 12.2. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, दैट इज फर्स्ट पार्ट, A रेशियो B प्रोपोर्शनल टू C रेशियो D. ये प्रोपोर्शनल का साइन है, तो हो जाएगा 15 रेशियो 21 प्रोपोर्शनल टू दी 50 रेशियो 70. तो अब लिखेंगे 15 अपॉन 71 इज इक्वल टू 50 अपॉन 70. तो अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे. राइट. ये दोनों कट हो रहे किसकी टेबल से स्टूडेंट्स, ये कट दोनों हो रहे हैं 7 3s are 21 एंड 5 3s are 15. राइट. तो ये हो जाएगा 5 रेशियो 7, हो गया 5 रेशियो 7 इज इक्वल टू 5 रेशियो 7. तो ये क्या हो गए स्टूडेंट्स, दे बोथ आर इक्वल. राइट. नाउ second, third, fourth is your homework. Now move to the next question, that is find x in the following proportion. हमें क्या find करना है, हमें 3 values given है, we have to find the x. तो चलिए अब हम start करते हैं हमारा next question, that is the second question, that is first part. क्या है हमारा, 36 रेशियो x डबल proportional to the 54 रेशियो 6.
ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा। हमने यही बोला था, फर्स्ट टर्म एंड द फोर्थ टर्म, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज नोन एज, और सेकेंड एंड थर्ड टर्म को हम बोलते हैं मिडल टर्म्स और मीन्स, और फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म्स को क्या बोलते हैं हम, दैट इज एक्सट्रीम टर्म्स, राइट। फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म्स ऑफ अ proportion are called the extreme terms, second and third terms are known as middle terms और mean। तो 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और 54 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 90 20 एंड 21, तो ये हो जाएगा 216 एंड 54x। तो x को कर लेंगे हम 216 अपॉन 54, तो इससे हमारी क्या वैल्यू फाइंड हो जाएगी स्टूडेंट्स, इससे हमारी वैल्यू फाइंड हो जाएगी किसकी, 4 की, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 54 की टेबल में 4 4 जा 16, 5 4 जा 20 एंड 1, तो 54 की टेबल में 4 टाइम्स आता है 216, तो हमारी x की वैल्यू हो गई 4, एंड दिस इज द रफ वर्क, right students। If you want to take screenshot you can take। now second third and fourth part is your homework। चलिए फिर हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। okay students, now move to the next, that is question number third। the length of a football ground is 42 meters if the ratio of the length and breadth, हमें रेशियो गिवन है लेंथ और ब्रेथ का, देन यू हैव टू फाइंड द ब्रेथ ऑफ द ग्राउंड, तो हमें फाइंड करना है ब्रेथ ऑफ द ग्राउंड। तो चलिए इसका सॉल्यूशन मैं यहीं पर कर देती हूँ। तो लेंथ और ब्रेथ का क्या गिवन है हमको, लेंथ रेशियो ब्रेथ क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 3:2। तो अब हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, नाउ लेंथ अपॉन ब्रेथ इज इक्वल टू 3/2, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेंथ हमें गिवन है 42, तो हम इसको यहाँ लिखते हैं 42/13 इज इक्वल टू 32/2। अब हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इससे हमारी क्या फाइंड हो जाएगी स्टूडेंट्स, ब्रेथ, ब्रेथ हमें नहीं पता है, दिस वन इज ब्रेथ, ब्रेथ हमको फाइंड आउट करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42 इंटू 2 इज इक्वल टू ब्रेथ इंटू 32, तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो ब्रेथ इज इक्वल टू 84/32, तो हम इसे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इट विल बी कट। 32 की टेबल में 84 कितने टाइम्स आता है, that will be 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो इससे छोटा नंबर लेते हैं 2 टाइम्स, 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, नहीं जाता है, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो 32 की टेबल में स्टूडेंट्स कितने टाइम्स हमें ये डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 32 डिवाइडेड बाय 84, 32 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, 32 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2 टाइम्स लेंगे हम, दैट इज 64, तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 2 की टेबल से कट हो रहा है, तो हम इसको 2 की टेबल से क्या कर देंगे, कट आउट कर देंगे, राइट। हम इसको सॉरी, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 6 2 जा 12, अगेन ये 2 की टेबल से कट हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 8 2 जा 16, राइट स्टूडेंट्स। तो हमारा आंसर क्या आ गया, दैट इज 42 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज 32
रेशियो क्या है हमारा स्टूडेंट्स? रेशियो इज 3:2, नॉट 32। इसलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा है, हमने 32 मेंशन किया है और रेशियो है हमारा 3:2। ये हो जाएगा बी and 3/2. Now we have to do cross multiply 42 into 2 and 3 is to b. तो हो जाएगा 2 2s are 4 and 4 2s are 8 and 3b. तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, it will breadth is equals to 84/3. तो हम इसको कट करेंगे डिवाइड करके, 3 2s are 6, तो 8 minus it will be 2 2s are 4 and 4 2s are 8, then divided by 3b. तो ये हो जाएगा 3 3s are 9, 8 2s are 6, तो यहाँ आ गया 2, 8 3s का क्या होता है 24 होता है। तो हमारा आंसर आ गया ब्रेथ का, दैट इज 28 meters. That's the final answer. Okay students, if you want to take screenshot, हमने रेशियो को 32 मेंशन कर दिया, दैट इज रेशियो 3:2. Now move to the next question, that is question number 4. चलिए, in a ratio the first and the fourth terms are, this is the first term and the fourth term, then this is the second term, क्योंकि हमको third term find करनी है. तो let's start with our question, that is question number 4. Question number 4, जिसमें हमको फर्स्ट टर्म गिवन है. फर्स्ट टर्म क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, दैट इज 217. देन फोर्थ टर्म भी गिवन है, क्या है हमारी फोर्थ टर्म, दैट इज 112. थर्ड टर्म हमको फाइंड करनी है, हमें सेकेंड टर्म भी दे रखी है, सेकेंड टर्म दैट इज 32. हमें फाइंड करनी है थर्ड टर्म, तो हम इसको लिखेंगे 217 रेशियो 32 डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू दी थर्ड टर्म हमको फाइंड करनी है, एंड द लास्ट टर्म फोर्थ टर्म इज 112. तो ये होगा इससे मल्टीप्लाई, ये होगा इससे मल्टीप्लाई, 217 मल्टीप्लाइड बाय 112 एंड 32 मल्टीप्लाइड बाय x. राइट स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको करते हैं, दैट इज 217 मल्टीप्लाइड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, वेट अ मिनट, हम इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, we will write that is 217 upon 112 and x upon 32. अब हम इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 217 मल्टीप्लाइड बाय 32 इज इक्वल टू 112x. राइट, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट विल बी 217 मल्टीप्लाइड बाय 32 अपॉन 112. तो इससे हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी. तो स्टूडेंट्स यू हैव टू फाइंड दी x वैल्यू बाय डूइंग, फर्स्ट यू हैव टू डू मल्टीप्लाई, देन यू हैव टू कट दिस. तो आप कट करेंगे तो इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, x की. राइट स्टूडेंट्स, तो हम इस इक्वेशन को भी हमारा करेक्ट कर देते हैं, दैट इज 200 ratio 112, then it will be direct proportional to the x ratio 32. right students, तो ये हो गया 217 अपॉन 112 और इसके बीच में हम लगा देंगे इक्वल्स टू का साइन एंड x अपॉन 32. तो इससे हमारी क्या आ जाएगी, x की टर्म आ जाएगी. तो हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 217 मल्टीप्लाइड बाय 32, 7 2s are 14, 2 1s are 2, 3, 2 2s are 4, then 7 3s are 21, 3 1s are 3, 4 5, then 3 2s are 6, 4 3 and 1 4, 5 and 4 9 and 6.
क्या हो जाएगा 6944 अपॉन 112। तो अब हमको इसको 112 से जब कट करेंगे हमारा आंसर आएगा 68। दैट्स द फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, आप इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। यू कैन सी 6944 डिवाइडेड बाय 112। तो 112 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 7 एंड 6 1 जा 6। तो 6 से 6 72। तो 0 4 माइनस 2 2, 9 माइनस 7 2 और नीचे आ गया 4। तो अब हमको 112 को जब 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज 62। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट you can take, students, if you want to take screenshot you can take. Then we will move to the next question. Six nine four four. 6944. So if you want to take screenshot of question number 4, you can take. Then we will move to the question number 5. चलिए, question number 5. So students, show that the following numbers are into the continued proportion. तो हमें इससे क्या करना है, continued proportion में लिखना है। तो चलिए, first part I will solve for you and second, third, fourth is your homework. First part, continued proportion. 441 ratio 84, then direct proportional to the 84 ratio 16. ये हो गया हमारा आंसर किसका, फर्स्ट का। नाउ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट इज योर होमवर्क। इट्स वेरी इजी। 441 हमें कंटिन्यूड प्रपोर्शन में लिखना था। 441 रेशियो 84 एंड डायरेक्ट प्रपोर्शनल, यहाँ पे डायरेक्ट प्रपोर्शनल का साइन है 84 रेशियो 16। चलिए, सिक्स्थ क्वेश्चन। इनकम टू द सेविंग रेशियो ऑफ अ पर्सन इज 9:2. His monthly income is rupees 9,000. What is his expenditure per month? तो स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। हमने ये प्रीवियस एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं। सो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। यू हैव टू ऐड द रेशियो, देन यू हैव टू फाइंड, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द 9, देन 2। किससे, 9,000 से। तो हमें पता चल जाएगा एक्सपेंडिचर पर मंथ। राइट स्टूडेंट्स, सो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। तो 9:2, तो हम ऐसे कर देंगे इसको। लुक एट हियर क्वेश्चन नंबर 6। कैसे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 में, इनकम रेशियो एक्सपेंडिचर। तो हमारा क्या 9:2 है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इनकम कितनी, रुपीज 9,000 एंड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 9:2। तो हम क्या लिखेंगे, 9,000 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 9/2। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9,000 multiplied by 2 is equals to expenditure into 9. So 9 2s are 18,000 is equals to the expenditure into 9. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स इसको, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा हमारा 80 एक्सपेंडिचर is equals to, that is 18,000 upon 9. 9 की टेबल में 2 times 18 आता है, 9 2s are 18 and 3 zeros. तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिचर is equal
equals to 2000. That's the final answer. If you want to take screenshot, you can take. Then we will move to the next question. That is question number 7. Rupees 2000. Rupees 2000. चलिए, if you want to take screenshot, you can take. Then move to the 7th question. Now, 40 kg of rice is needed to serve 140 people. How much rice would be needed for 60 people? Is just क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन मैं यहाँ पे कर रही हूँ स्टूडेंट्स. क्या है क्वेश्चन? 40 kg of rice is needed to serve 160 people. How much rice would be needed for 60 people? तो 60 लोगों के लिए कितना राइस नीड होगा? तो हमारी लेट x kg राइस इज नीडेड. राइट स्टूडेंट्स, हमने x kg मान लिया तो हमारा क्या बन जाएगा? 40 रेशियो x इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू दी 160 रेशियो 60. तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 40 अपॉन x इज इक्वल्स टू 160 अपॉन 60. राइट स्टूडेंट्स, तो हम इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया. अब हम करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 40 into 6 is equals to the 16x. Right students, 6 4s are 24 and 0 and it will be 16x. Right? Now x equals to 240 upon 16. Right students, तो ये 16 की टेबल में 6 4s are 24, 4 1s are 4 5 6. तो 6 की टेबल में 6 4s are 16 4s are 24. तो 0 as it is आ गया. तो हमारा आंसर क्या हो गया कट करने पे? दैट इज इसको कट करने पे हमारी x की वैल्यू आ गई. दैट इज 40. क्या हो गई स्टूडेंट्स? क्योंकि 16 4 का क्या होता है? हमारा 64 होता है. 6 4 24. वेट मिनट, वेट स्टूडेंट्स. तो ये हो जाएगा 16 की टेबल में 16 2 जा, दैट विल बी 6 2 जा 12 एंड 2 2 जा 2 1 जा 2 एंड 3. तो हमें इसको कट करना है तो हम इसको करेंगे कट 2 की टेबल से. 6 4 जा 24 एंड 0 एज इट इज. और 10 से 10 क्या हो गया स्टूडेंट्स? कट हो गया. तो हम 240 को 16 की टेबल से कट करेंगे. राइट? तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16 एंड 12 2 जा 24 0. अगेन ये कट हो रहा है 2 की टेबल से. 4 2 जा 8 एंड 6 2 जा 12 एंड 0. अगेन ये कट हो रहा है 2 से. दैट इज 3 2 जा 6 एंड 0 2 2 जा 4. तो फाइनल आंसर है 30 अपॉन 2. अभी भी ये कट हो रहा है तो ये हो जाएगा कट. 2 1 जा 2 एंड 1 5 2 जा 10. तो हमारा आंसर आ गया 15. तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स? हमारी x की वैल्यू हो गई 15. इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक. देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट. तो स्टूडेंट्स हमें क्या बताना है? 40 kg राइस वुड बी नीडेड फॉर 15 पीपल. राइट स्टूडेंट्स? तो x की वैल्यू हमारी आ गई 15. हमें यही फाइंड करना है. अब अगर आप इसको डिवाइड भी करोगे 16 को 240 से तो ये 15 टाइम्स पूरा कट हो जाएगा. यू कैन सी हमने तो इजी सिंपलेस्ट वे में इसको कट कर दिया. आप ऐसे भी कर सकते हैं. 16 को डिवाइड कर दो 240 से तो हो जाएगा 16 1 जा 16. देन रिमेनिंग क्या बचेगा स्टूडेंट्स? 14 माइनस 6 it will be 1 2 3 4 5 6. it will be 8 and 0 and 16 5 जा 5 6 जा 30 6 1 जा 6 5 1 जा 5 plus 3 8. तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 टाइम 80. क्या हो जाएगा? 80. तो हमारा आंसर क्या आया स्टूडेंट्स? 15. तो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई? 15. इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 यू कैन टेक.
Now move to the next question, that is question number 8. चलिए question number 8. The map of a rectangular field is drawn on a scale that is 1:80. If the actual length of the field is 240 meter, what will it be on the map? So this question is very easy. This is your homework. Now move to the next question, that is question number 9. An aeroplane uses 600 L of 600 liter of fuel in 5 minutes. How much fuel is used in 18 minutes? So we have to find the, क्या फाइंड करना है हमको कि एरोप्लेन 18 मिनट्स में कितना फ्यूल यूज करता है. So let's start with our question number 9. Question number 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं. एंड aeroplane used fuel in 5 minutes. Used in fuel 5 minutes. And aeroplane use fuel in 1 minute. Use fuel in 5 minutes and use fuel in 1 minute. तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा? इट विल बी एन एरोप्लेन यूज फ्यूल in 18 minutes. Then it will be 600 upon 5 into 18. तो ये हो जाएगा 2160 लीटर्स इसको कट करने पे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट you can take. Then we will move to the next question, that is question number 9. Sorry, 10. Okay, next. A car travels 300 kilometer and uses 15 liters of petrol. How much petrol will the car use in a journey of 400 kilometers? So this question is very easy. This is your homework. Now move to the next question. That is question number 11. Leela sold rupees 7,000 worth of medicines and got a commission of rupees 225. If she would have sold rupees 8,400 worth of medicine, what would be her commission? तो हमें लीला का कमीशन बताना है. Let's start with our question number 11. तो स्टूडेंट्स 7,000 ratio 8,400 is direct is equals to the 225 ratio x. तो इससे हम क्या निकाल लेंगे? उसका कमीशन. तो 7,000 upon 8,400 is equals to 225 upon x. अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ये हो जाएगा 7,000 मल्टीप्लाइड बाय x, 8,400 मल्टीप्लाई बाय 225. तो x इक्वल्स टू 8,400 इंटू 225 अपॉन 7,000. तो इसको जब हम कट करेंगे तो इससे हमारी क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? इससे हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, सो x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसे कट करके. सो दिस इज योर होमवर्क. तो इससे उसका क्या आ जाएगा? कमीशन आ जाएगा. क्या आ जाएगा? कमीशन. राइट स्टूडेंट्स.
से उसका आ जाएगा कमीशन, दैट इज एक्स वैल्यू. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये आपको मल्टीप्लाई करके इसको कट करना है. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, 12th question. The interest on rupees 6,000 for the 1 year is rupees 360. What is the interest on rupees 8,000 for 1 year? Right students, so we have to find the interest for 1 year. If you want to take screenshot of question number 11, you can take. Then we will move to the last question of this exercise. Chaliye. Last question, that is the 12th question. 1 year amount is proportional to the second year amount. Then it will be direct proportional to the first year interest. First year interest is proportional to the second year interest. That will be second interest and first interest. We can write first interest and this is the second interest. तो हमें 1 year का अमाउंट गिवन है, तो हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं स्टूडेंट्स. ₹6,000 एंड ₹8,000 और हमें एक इंटरेस्ट हमें पता है, दैट इज 3,600. हमें सेकेंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं. 6,000 अपॉन 8,000 इज इक्वल टू 360 गिवन है, राइट. दैट इज दी ₹360 1 ईयर का इंटरेस्ट है. तो 360 अपॉन एक्स, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ये हो जाएगा 6,000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8,000 इंटू 360. तो ये क्या हो जाएगा, 8,000 इंटू 360 अपॉन 6,000. तो 30 से 30 कैंसल आउट हो जाएंगे. तो हमारा x का आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 480. हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 को किससे, 8 से. 8 0 का 0, 8 6 जा 48, 8 3 जा 24 प्लस 4 दैट इज 28. तो ये हो जाएगा 2880 अपॉन 6. जब इसको कट करेंगे तो आंसर आएगा 480. दैट्स द वैल्यू ऑफ x. ये हो गया हमारा सेकेंड इंटरेस्ट. ये हो गया हमारा सेकेंड interest. If you want to take screenshot, you can take. Your exercise 12.2 is completed. Okay students, if you want to take screenshot, you can take. In our next video, we will start with our next exercise. That's all for today. Thank you class.